going to study chapter present tense. We are going to see what are present tense. Students, present tense are the actions that are done usually, often, sometimes or every day. That is the actions which are going on presently, जो अभी चल रहा है. We will talk about this. Now students, सबसे पहले हम पढ़ते हैं simple present tense. What are simple present tense? Students, for simple present tense, let's see some rules for that. First of all, we will study affirmative sentences. Affirmative sentences are positive sentences, जिसके लास्ट में ता, ती, ते है. हम समझ जाएंगे कि that we are talking about present, simple present affirmative sentences. So what are the rules for that? Students, we will use subject plus verb की first form plus s या es या फिर object. Students, this is the rule for affirmative. अब students देखते हैं this example में the sun rises every day. Students, यहाँ पर जो subject है, the subject we are talking about, sun is the subject. Now this is the verb and this is the object. Now students, अब according to the rule, subject क्या है? Sun. Okay, verb की first form what will be? Rise. ओके और राइज के साथ हमने क्या लगाया है? एस. वी हैव पुट एस ओवर देयर. हमने यहाँ पर एस लगाया है और ये क्या बन गया? राइजेस. तो हो गया ये वाला यहाँ तक कंप्लीट. नाउ ऑब्जेक्ट इज एवरी डे. ओके, द लेफ्ट ओवर पार्ट विल बिकम द ऑब्जेक्ट. नाउ स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट्स कम टू द नेगेटिव पार्ट. नेगेटिव सेंटेंसेस. नाउ फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस what we have to do, we will see the subject plus do या फिर does, not और verb first form plus object. Students, for this हम use करेंगे do या does और उसके साथ आपका not लग जाएगा, so that we will say that it is a negative sentence. Negative sentence का मतलब क्या है? नहीं वाले sentences इसमें जुड़ जाएंगे. Now students, verb की first form plus object. Now example for that is we do not go for a walk. यहाँ पर देखिए we is what? We is your subject. Do not. Do यहाँ से आ गया और not हमारा आ गया यहाँ से for negative sentence. अब verb की first form go is the first form of verb for a week. ये आपका क्या हो गया? Object. Understood students? Now अब ये तो बात थी आपकी प्लूरल की. वी क्या होता है? वी इज फॉर प्लूरल. नाउ सिंगुलर. अब डज के लिए देखिए, डज किसके साथ लगता है? डज ऑलवेज यूज बिफोर सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स. जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे हम उनमें हम डज लगाएंगे. सो स्टूडेंट्स, द एग्जाम्पल इज ही डज नॉट गो फॉर अ वॉक. यहाँ पर ही यूज़ किया है हमने और ही की जगह अब की बारी हमने डू की जगह क्या यूज़ किया है? डज. एंड फॉर नेगेटिव सेंटेंसेज वी हैव यूज्ड not go for a walk. I hope students ये भी आपको समझ आ गया होगा. Let's move on to the negative interrogative sentences. For interrogative sentences you will use do and does instead of subject. Students, इनमें हमने क्या किया था? पहले subject को यूज़ किया था, then we go for verb and any other thing. लेकिन interrogative sentences में हमारा जो verb है, हमारी जो हम यूज़ करेंगे do या does, वो हमारा पहले आएगा एंड देन वी विल यूज सब्जेक्ट उसके बाद आएगा. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क. डू नॉट फॉरगेट टू राइट क्वेश्चन मार्क अगेंस्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज. अब लेट्स सी द एग्जाम्पल फॉर दैट. सबसे पहले एक एग्जाम्पल है डू यू लिव इन अमेरिका एंड क्वेश्चन मार्क. स्टूडेंट्स, हमने यूज़ किया डू. यू देखिए, यू आपका क्या है? यू आपका है सिंगुलर. सॉरी, इस यू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? डू यूज़ करेंगे. डू यू लिव इन अमेरिका. ओके स्टूडेंट्स. नाउ और इसी तरह से अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो ही शी इट है तो वहाँ पर हम डज का यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ आ गया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. What are present continuous tense? Students, present continuous tense are the actions that are still going on presently when we are speaking. जब हम बोल रहे हैं तो उस वक्त भी वो जो काम है वो हो रहा है. Okay, let's move on to some affirmative sentences. Affirmative sentences के rules हैं subject plus is am are plus verb की first form plus ing and plus object. Students,
यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए लेट्स सी एग्जाम्पल फॉर दैट। एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझेंगे इसे। सी, राम इज गोइंग टू स्कूल। राम जो है वो स्कूल जा रहा है। नाउ राम इज व्हाट, राम इज योर सब्जेक्ट। अब देखिए जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट्स, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है वी विल यूज इज, ओके। और अगर आपके पास आई है, आई भी हमारा सिंगुलर ही होता है, और आई के साथ वी विल ऑलवेज प्लेस एम। बट इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, अगर आप वी है या फिर दे है तो आप उसके साथ आर का यूज़ करेंगे, ओके। नाउ स्टूडेंट्स अगेन बैक टू द एग्जाम्पल, राम इज़ गोइंग टू स्कूल। राम इज़ योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है वो आपका सिंगुलर है, इज़ हमने यूज़ किया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वी हैव यूज इज़। गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। नाउ फॉर नेगेटिव सेंटेंसेज वी विल यूज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। स्टूडेंट्स सेम जो एफर्मेटिव सेंटेंसेज में है यहाँ पर भी सेम होगा, बट वी हैव यूज ओनली नॉट। यहाँ पर हम नॉट का यूज़ करेंगे सिंपल, इसीलिए वो हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंसेज। फॉर एग्जाम्पल पर आइए, राम इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। अब स्टूडेंट्स राम हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इज़ लगाया हमने। अब नॉट है, नॉट लगा दिया। गोइंग, अगेन गोइंग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और दिस इज द ऑब्जेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज स्टूडेंट्स इज एम आर जो होंगे आपके, दैट विल प्लेस बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आएगा। अब यहाँ पर क्या है, आर यू, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। सो आर यू गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क, जैसे हमने पहले वहाँ पर किया था उसी तरह से है स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, गोइंग आ जाएगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब स्टूडेंट्स कुछ रूल्स देख लेते हैं। आई के साथ वी ऑलवेज यूज एम, ही शी इट के साथ वी ऑलवेज यूज इज। क्यों, बिकॉज दे आर सिंगुलर, ये सिंगुलर हैं। हमें सिंगुलर कैसे पता चलता है, एक ही चीज़, ही शी इट ये एक है, और अगर प्लूरल हो वी विल यूज आर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।